Hello students, here we are once again with JPIC District Study. Students, today in this video we are going to learn about the poem The Duck and the Kangaroo written by Edward Lear, who was born in United Kingdom at Holloway on 12th May 1812 and was died on 29th January 1888 at Sanremo, Italy. His parents are Jeremiah Lear and Anne Lear. He was well known for his literary nonsense in poetry. He was a good artist, illustrator, writer and poet. He had written many books. His famous work are Kanchenjunga, Hawatke, Masada on Dead Sea and Noneham. He had written many books and some of his famous books are A Book of Nonsense, The Owl and Pussycat, The Complete Nonsense of Edward Lear, The Jubilees Laughable Lyrics. He is known for his nonsense literary works in poetry and prose, and especially his limericks. In the prescribed poem, The Duck and the Kangaroo, he had written about a dialogue in between the two famous creatures of the earth, duck and the kangaroo. So let's read the poem and know what the poet wants to say to us. This is a humorous poem of a kind known as nonsense verse by Edward Lear. यह एक प्रकार के नॉनसेंस लिरिक्स से रिलेटेड उनकी पोएम है. Now listen, I said the duck to the kangaroo, good gracious how you hop over the fields and water too, as if you never would stop. My life is bored in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. In these lines, the poet wants to describe the dialogue between the duck and the kangaroo, when the duck wants to say to kangaroo that how he hop like that on his two hind legs. He also declared to him that he felt uneasy in the lonely pond where the water is too dirty. Said the duck to the kangaroo. उस बत्तख ने कंगारू से क्या कहा? कहती है गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप. जब वह कंगारू को उछलते हुए देखती है तो कहती है कितने शानदार तरीके से तुम उछल रहे हो. ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, खेतों में भी, मैदानों में भी और पानी में भी, कहीं भी हो हर जगह तुम उछलते हुए निकल जा रहे हो. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और इस तरह उछलते हुए चल रहे हो जैसे लगता है कि तुम कभी भी रुकने वाले नहीं हो. माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पूल, और मैं एक बतख के रूप में मेरा जीवन इस गंदे से तालाब में बड़ा उबाऊ हो गया है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं भी इस विशाल दुनिया में घूमना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मेरी इच्छा है, बतख कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह उछलूं. सेड द डक टू द कंगारू, ऐसा उस बतख ने कंगारू से कहा. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड सेड नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, एंड वी गो टू द डी एंड जेली वोबली over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. In this very stranger, the duck wants to say to the kangaroo where she wants to go. कहाँ कहाँ वह जाना चाहती है. And also declared that she said nothing
but only the word quack as the duck used to speak. उस डक ने कहा प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। उसने कहा कि कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। सेड द डक टू द कंगारू, उस बतख ने उस कंगारू से कहा आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। उसने कहा कि मैं जब वहाँ होंगी, वहाँ बैठ जाऊंगी तो मैं बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी। से नथिंग बट क्वैक, कुछ नहीं कहूँगी, केवल क्वैक क्वैक का शब्द करूँगी जब तुम उछलोगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और यही मेरे दिन भर की दिनचर्या होगी, मैं केवल क्वैक क्वैक की आवाज़ करूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी। एंड वी हैड गो टू द डी एंड जेली वोली, और हमें झीलों, पहाड़ों और नदियों की ओर जाना है, उनका दर्शन करना है। प्लीज़ टेक मी और राइड ओवर यू। उसने कहा हे मित्र, कृपया मुझे अपनी सवारी कराओ। बत्तख ने कंगारू से कहा। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, perhaps on the whole it might bring me luck, and this seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. Said the kangaroo to the duck. जब डक ने कंगारू से इतना रिक्वेस्ट किया तो उस कंगारू ने उस बत्तख से कहा दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन। उसने कहा कि इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, और शायद तुम्हें मेरी पीठ पर बिठा करके मेरा भी भाग्य संवर जाएगा। एंड दिस देयर सीम्स बट नो ऑब्जेक्शन, लेकिन ऐसा करने में मुझे खुशी होगी, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, मुझे एक असुविधा है। विच इज़ इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, जिसको कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। अगर तुम मुझसे इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे स्पष्ट कहने की इजाज़त दो तो मैं तुम्हें इतना बताना चाहूँगी योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि तुम्हारे जो पैर हैं अनप्लीजेंटली मीन्स जो मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले नहीं, मुझे दुखी करने वाले हैं, क्योंकि वे बहुत ही भीगे हुए हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू, और हो सकता है कि वह मुझे कष्ट पहुँचाएं। सेड द कंगारू, उस कंगारू ने उस बतख से कहा कि उसके नम पैर जो हैं उसको ठंडा करते हुए उसे असहज करेंगे। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought your pair of worsted socks, which fit my feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. Said the duck as I sat on the rocks. उसके कंगारू के उन बातों को सुन करके बतख ने जवाब दिया एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं पानी से निकलकर चट्टानों पर बैठा हुआ था। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने भी अपने इन ठंडे पैरों के बारे में पूरी तरह से विचार किया, मैंने उसके बारे में सोचा। एंड आई बॉट योर पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स, और मैंने तुम्हारे उन बेकार हुए पुराने हुए मोजों के बारे में सोचा और उनको खरीद लिया। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे वेब फीट यानी जालीदार पैरों में अच्छी तरह से फिट आ गए हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और उस ठंडी को दूर भगाने के लिए आई हैव बॉट अ क्लोक। क्लोक मीन्स होता है ढीला ढाला वस्त्र। मैंने एक लबादा खरीदा है, ढीला ढाला वस्त्र खरीदा है, ऊनी वस्त्र खरीदा है। एंड एवरी डे आई सिगार आई विल स्मोक, और सर्दी को दूर करने के लिए प्रतिदिन मैं एक सिगार का सेवन करती हूँ, एक सिगार का धूम्रपान करती हूँ। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और उसने साथ ही साथ कहा कि मेरे प्रिय मित्र, और एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे मित्रों के रूप में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वह कौन है, वह कंगारू हैं। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale,
but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. Said the kangaroo, I am ready. उसकी इन बातों को सुन करके कंगारू निश्चिंत हो जाता है और कहता है कि मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ. All in the moonlight pale, और जब चांदनी रात होगी, but to balance me well, तब हम तैयार हैं और उस यात्रा के लिए निकलेंगे. लेकिन याद रखना, बैलेंस मी वेल, मेरे ऊपर संतुलित होकर के बैठना. डियर डक सिट स्टडी, और स्थिर और संतुलित होकर अपना संतुलन बना करके बैठना. एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और ऐसा करना तब संभव होगा जब तुम मेरी पूंछ के बिल्कुल सिरे पर बैठोगी. सो अवे दे वेंट विद द हॉप, और ऐसा करके वे दोनों उछलते हुए चले गए. एंड अ बाउंड मीन्स इस तरह से शर्तों को मान करके वह उसकी पूंछ पर बैठ गई और उछलते मुड़ते उछलते वह चल पड़े. एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और इस तरह उछलते हुए उन्होंने पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाया. एज हु शो हैप्पी ओ हु, और पोइट कहता है कि इस कार्य को करने में कौन अधिक प्रसन्न था. एज द डक एंड द कंगारू, जितना डक पसंद था, जितना प्रसन्न बत्तख था, उतना ही कंगारू भी था, क्योंकि वे एक दूसरे से स्नेह करने लगे थे और पूरी दुनिया का उन्होंने चक्कर लगा लिया था. Dear students, read this poem with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.